Hello and welcome in my YouTube channel. This one is the second part of agriculture chapter. In first part we have covered definition of agriculture, types of agriculture and cropping pattern. So just let's revise it first. So what is agriculture? Agriculture is a science to cultivate crops, harvest. Types of agriculture, broadly we can classify it into three categories. Subsistence farming, which is also known as slash and burn, shifting agriculture. It's locally named like Jhuming, Milpa, others. Intensive subsistence agriculture, and last one is commercial farming. Cropping pattern, according to the time or according to the temperature or rainfall, there are three types of cropping pattern: Kharif, Rabi and Jayad. Okay, in this video we will cover major crops, steps taken by the government, by the development of agriculture, food security and other things. Before starting, don't forget to like and subscribe my channel, and welcome for your comment also. Now start. Agriculture. Major crops. We can classify crops broadly into three categories: food grains, crops other than grains, and non-food crops. So first of all, one by one, food crops. In food crops, wheat, paddy, millets, maize, pulses are very common. Food crops other than grains like sugarcane, oilseeds, tea, coffee, and non-food crops generally rubber, cotton, jute, etc. So one by one, food crop. Paddy. Paddy is a staple kharif crop. Staple means important, very common. Okay, and kharif crop means, when we talk about kharif crops, so we have to think कि such type of crop is shown at the time of जून और जुलाई. मीन्स इस क्रॉप को अधिक गर्मी की जरूरत होती है और अधिक पानी की जरूरत होती है. ठीक है. टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए. रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर होना चाहिए. ह्यूमिडिटी 60 to 80% हमारे एटमॉस्फेयर में होना चाहिए, जो इस समय चल रहा है. ठीक है. ये सितंबर का महीना है और हमने पैडी का कल्टीवेशन टाइम स्टार्ट होता है लास्ट जून से जुलाई. ठीक है. तो ये एक्चुअल टाइम है खरीफ क्रॉप के लिए. एरिया इन इंडिया स्पेशली नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स, coastal areas and deltaic region is fit for the cultivation of paddy. plains में जनरली किस तरह के सॉइल पाए जाएंगे? एलुवियल सॉइल, ओल्ड और न्यू. ठीक है. खादर बांगर में भी. कोस्टल एरियाज में भी प्लेन पाए जाएंगे एंड डेल्टाइक रीजन में भी प्लेन एरियाज एलुवियल सेडिमेंटेशन पाया जाता है. इट मीन्स एलुवियल सॉइल इज वेरी कॉमन, वेरी फिट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ पैडी क्रॉप्स. Next important crop is wheat. Wheat is the second most important cereal crop after paddy. Wheat is the rabi crop. Wheat का कल्टीवेशन जब गर्मी खत्म होने होती है और ठंडी शुरू होने वाला होता है, तब इसका कल्टीवेशन स्टार्ट करते हैं. मीन्स फ्रॉम लास्ट अक्टूबर टू नवंबर. तो उस समय ठंडी
शुरू होती है, इसलिए इसके लिए टेम्परेचर और रेनफॉल कम चाहिए होता है. सो इट रिक्वायर्स 20 डिग्री टू 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, रेनफॉल 50 to 75 centimeter. But there is a special condition for wheat. It requires cool growing season and bright sunshine at the ripening. ठीक है, पूरे सीजन में से ठंडा टेम्परेचर चाहिए, और जब राइपनिंग हो, जब फसल पकने लगे, तो एकदम ब्राइट सनशाइन होना चाहिए. ठीक है, चमकीली धूप होनी चाहिए. लेकिन ठंडी के समय में चमकीली धूप होती है, लेकिन ठंडी नहीं, गर्मी नहीं होती. ठीक है. नाउ द एरियाज गंगा सतलज प्लेन, नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द दक्कन. जनरली our agricultural field are common for both paddy crop and for wheat crop. तो गर्मी के समय में उसी एग्रीकल्चरल फील्ड पे हम पैडी का कल्टीवेशन करते हैं, और ठंडी के समय में वीट का. ठीक है, दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप. टेम्परेचर, रेनफॉल, it requires cool growing season and bright sunshine at the ripening, and the areas are common for the cultivation of wheat. Now next one is millets. Jowar, bajra and ragi are important coarse crop. Coarse means मोटे अनाज. ठीक है, इनको मिलेट्स के अंडर में रखा जाता है. मोटे अनाज हैं ये, बट दे आर न्यूट्रिशियस, दे आर फाइबर, इट कंसिस्ट फाइबर. Jowar is the third most important food crop with respect to area and production after paddy and wheat. ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर कल्टीवेशन और प्रोडक्शन किसी और क्रॉप का होता है तो वह है ज्वार. ठीक है, इट इज़ द कोर्स ग्रेन. इसका मतलब इसको पानी की जरूरत बहुत ही कम होती है. महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार. Karnataka is the largest producer of ragi, and Rajasthan is the largest producer of bajra. These three crops are very common in those areas where the rainfall is less than 50 centimeter, or you can say these crops are the common in rain fed area, जहाँ पर बारिश कम होती है. ठीक है, जहाँ की मिट्टी हल्की सी बालू मिली हुई होती है, सैंडी सॉइल, एकदम सैंड नहीं, मिक्सचर. Next one is maize. Maize is खरीफ क्रॉप. आप इस समय मार्केट में मेज देख रहे होंगे. वी यूज मेज एज अ फूड और एज अ फोडर ऑल्सो. हम खुद भी खाते हैं और इसको अपने कैटल्स को भी खिलाते हैं. टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 21 to 27 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. ग्रो वेल इन ओल्ड एलुवियल सॉइल. बांगर में ये अच्छा कल्टीवेशन होता है इसका. मीन्स द एरिया विच इज नॉट कवर्ड बाई वाटर एट द टाइम ऑफ फ्लड और जनरली कॉमन रेनफॉल. बांगर और खादर आपने पढ़ा था क्लास 9th में. ओके. नाउ नेक्स्ट topic is, as we know, agriculture is very important for Indian economy. So that's why after independence, government has taken number of steps for the development of agriculture. These are the few steps. We can classify these steps into two categories: technological and institutional. ठीक है. Technological example, modern machine, HYV seeds, fertilizers, pesticides, insecticides, weather forecast, etc. मीन्स एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए हमने ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर को छोड़कर उसको और डेवलप करने के लिए मशीन्स का इस्तेमाल किया. इन प्लेस ऑफ बुल, नाउ दिस टाइम एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिसिंग by farmers with the help of tractor, thresher, harvester. Number of modern machines
available here. HYV seeds. These are not a common seed. Means with the help of science, we increase the capacity of production. ठीक है, that seeds, such type of seeds known as HYV seeds. Fertilizer, chemical urea and other things, zinc, potash according to the need. Pesticides and insecticides, both are same. पेस्टिसाइड्स मीन्स होता है जब बहुत ही छोटे बैक्टीरिया या वायरस की वजह से प्लांट्स खराब होते हैं, तब जो हम केमिकल यूज़ करते हैं उसे पेस्टिसाइड्स कहते हैं. लेकिन और जो बड़े इंसेक्ट्स के थ्रू हमारे क्रॉप्स खराब होते हैं, उनसे बचाव के लिए जो हम केमिकल यूज़ करते हैं उसे इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं. तो हमारे क्रॉप्स खराब ना हो, ठीक है, उनसे बचाने के लिए हम केमिकल का यूज़ करते हैं. तो ये भी क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी. वेदर फोरकास्ट, कब बारिश होगी, कहाँ पे बारिश होगी, इसका भी हम अनुमान लगा सकते हैं, प्रिज्यूम कर सकते हैं. नाउ इंस्टीट्यूशनल स्टेप्स. अभी हमने जो बात किया वो था टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, और अब आता है इंस्टीट्यूशनल स्टेप. एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए सबसे पहला स्टेप कलेक्टिवाइजेशन था. कलेक्टिवाइजेशन वैसे तो यूनाइटेड स्टेट में सोवियत यूनियन में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 1928 के अबाउट. इसमें क्या था कि किसी एक फार्मर्स की ज़मीन, थोड़ी थोड़ी ज़मीन अलग अलग जगहों पे बिखरी हुई थी. तो फार्मर को बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि हम अपने फार्मर के अरेंजमेंट्स को हर एक जगह हम अरेंज नहीं कर सकते. इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि सारे ज़मीनों को एक साथ इकट्ठा कर दिया. इसे कहते हैं कलेक्टिवाइजेशन. कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स. इसमें पहले आपने लोगों ने सुना होगा कि राजा हैं तो इनके पास इतने बीघे ज़मीन है, 100 गांव हैं, बहुत सारी ज़मीनें हैं उनके पास. तो इसको इंडिपेंडेंस के बाद ख़त्म कर दिया गया, और इस समय मैक्सिमम कोई भी व्यक्ति 160 बीघे ज़मीन ही रख सकता है. यू कैन से 32 एकर्स, ठीक है. उसमें भी अलग है कि अगर वो इरिगेटेड लैंड है तो कम होगा, और नॉन इरिगेटेड लैंड है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा. ये डाटा आप देख लेंगे नेट से. फिर एबोलिशन ऑफ जमींदारी. हिस्ट्री में जमींदारी टॉपिक कवर किया होगा आप लोगों ने. जमींदार ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम, जमींदार वर्क एज अ मीडिएटर बिटवीन फार्मर्स एंड ब्रिटिशर्स. जमींदार फार्मर्स से, इंडियन फार्मर्स से टैक्स लेकर के ब्रिटिश को सबमिट करते थे, ठीक है. तो इस सिस्टम को ख़त्म किया इंडियन गवर्नमेंट ने. देन किसान क्रेडिट कार्ड. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम थी कि फार्मर हैं, ज़मीन भी है, लेकिन एग्रीकल्चर करने के लिए पैसा चाहिए. तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की. जैसे हमारे पास क्रेडिट कार्ड होता है, वैसे ही फार्मर्स का बैंक में एक किसान क्रेडिट कार्ड होता है, जिससे वो अपने फार्मिंग के लिए चीप इंटरेस्ट पे लोन मिलता है. उसे कहते हैं किसान क्रेडिट कार्ड. हर एक गांव में बैंकिंग एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए बैंक खोले गए, ग्रामीण बैंक खोले गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ खोली गई, किसान कॉल सेंटर बनाया गया, जहां पर एक किसान कॉल नंबर है, फ्री टोल नंबर, जिस पे आप फ़ोन करेंगे तो कोई ना कोई रिसीव करेगा और आपके प्रॉब्लम्स को वो सुन करके आपको उसको सजेशन पास करेगा. प्रोग्राम्स ऑन टीवी एंड रेडियो. रेडियो पे और टीवी पे फार्मर्स से रिलेटेड प्रोग्राम्स आते हैं. उसमें अलग अलग बीमारियों के बारे में, अलग अलग तरह से एग्रीकल्चर करने के पैटर्न के बारे में डिस्कस होता है, ठीक है. इंट्रोड्यूसिंग ऑफ MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस. पहले क्या होता था कि फार्मर एग्रीकल्चर तो करता था, लेकिन उसके क्रॉप्स मार्केट में जब आते थे उसको एक प्रॉफिटेबल प्राइस पे वो बेच नहीं पाता था. प्रॉफिटेबल प्राइस पे वो मार्केट में सेल नहीं कर पाते थे अपने क्रॉप्स को.
तो गवर्नमेंट ने हर एक क्रॉप्स के लिए एक फिक्स रेट किया हुआ है, उसे ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, ठीक है। ईयर बाय ईयर और सीजन बाय सीजन ये चेंज होते रहते हैं, सो इट इज नॉट अ फिक्स। नेक्स्ट पॉइंट इज भूदान या ग्रामदान। दिस वन इज द रेवोल्यूशन स्टार्टेड बाय द विनोबा भावे by the guidance of Mahatma Gandhi. By the influence of Vinoba Bhave, Jamidar Sri Ramchandra Reddy had given 80 acres to 80 landless villagers under this revolution, and it was started of this movement when some Jamidars offered to distribute some villages. दिस भूदान आंदोलन कन्वर्टेड इनटू ग्रामदान, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या कि विनोबा भावे महात्मा गांधी जी से बहुत ही इंस्पायर्ड थे, और आफ्टर द डेथ ऑफ महात्मा गांधी विनोबा भावे वेंट विलेज टू विलेज एंड प्रीच द पॉलिसी, द थिंग्स ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। बट in one village, one farmer asked the Vinoba Bhave कि what we do, we have no any land, ठीक है। तो विनोबा भावे ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये स्टेप्स उठाने के लिए जमींदार्स को, लैंडलॉर्ड्स को इंस्पायर किया, और ये एक सक्सेसफुल रिफॉर्म रहा। नेक्स्ट पॉइंट इज फूड सिक्योरिटी। In order to ensure availability of food to all sections of society, government designed a national food security system. सभी को कम से कम जीने के लिए, ग्रेन्स अवेलेबल कराने के लिए, फूड अवेलेबल कराने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम, कुछ स्टेप्स उठाए हैं। फर्स्ट वन इज बफर स्टॉक। मीन्स गवर्नमेंट अपने पास फार्मर्स के क्रॉप्स को स्टोर करेगी, उसे कहते हैं बफर स्टॉक, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए आपकी ज़रूरत है 10 रुपये और आप 20 रुपये अर्न कर रहे हैं, तो वो 10 रुपये आप कहाँ रखते हैं? बैंक में। तो वो जो सेविंग मनी होगी आपकी, उसे कहते हैं बफर स्टॉक। वैसे ही ग्रेन्स के भी सेविंग की जाती है, स्टोर किया जाता है, ठीक है। आपके रॉबर्ट्सगंज शहर में भी FCI गोदाम हैं, गोडाउंस हैं। नेक्स्ट वन इज PDS सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फिर गवर्नमेंट ने उन लोगों का लिस्ट बना के रखा हुआ है, दोज वन आर बिलो पॉवर्टी लेवल। APL कार्ड और BPL कार्ड, दो तरह के कार्ड्स होते हैं। तो जो लोग BPL कार्ड में आते हैं, गवर्नमेंट उनको फ्री में या बहुत ही चीप रेट पे वीट, राइस, केरोसिन ऑयल, शुगर, ये सब चीज़ें अवेलेबल कराती हैं। तो वो जो सिस्टम है उसे कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नाउ थर्ड पॉइंट इज FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरिंग एंड स्टॉकिंग फूड ग्रेन्स। जो मैंने अभी आपको बफर स्टॉक में बता रहा था, वही है, ठीक है। सो दिस इज योर लास्ट टॉपिक। Thank you, but don't forget to like and subscribe my channel.